A star. All right. This grade is achievable. You can. Yes, you can achieve it. Is it an ordinary grade? It's extraordinary grade. Isn't it so? So it requires extraordinary care. Means it requires extraordinary preparations. Right? So I am confident that my students they can achieve this grade, excellent grade. And I'm not saying it so because I am optimistic. Rather, I'm banking on my own experience of teaching O levels for more than 18 years. And I had students who were at C, somewhere at the middle of the C. They were able to achieve excellent grades. Yes. But it all depends upon you people. I have seen students who are A star. और बाद में ये जो 3 months है 4 months इनमें वो पंजाबी में कहते हैं ना पुठे कसबाज पै जाते हैं उल्टे पुल्टे काम हाँ जी उसमें उनके ग्रेड्स का बेड़ा गर्क हो जाता है बेटा आपने सारी यशी कर ली है you cannot afford to waste your time now all right so करना क्या है पढ़ना इंसानों की तरह मैंने अपना जोर ए स्टार वाला लगाना है इट्स अप टू यू वेदर यू रिसीव ए स्टार A B C D E or whatever you do. All right, but remember, do remember there is another party as well, another stakeholders who have a blind trust in you people and in CLA. They are paying your fees at schools, heavy fees. And now they are paying fees for the CLA. Just thinking that their child is going to achieve this grade. Are you ready for that? आज अगर इम्तिहान हो तो अपनी अपनी कॉपी से बेटा वो ग्रेड जो आज आप समझते हो अचीव कर लोगे वो लिख लो ताकि आपको पता हो कि हम इन 3 months में इस ग्रेड से कहां तक पहुंचे इस वक्त everybody knows himself or herself better where I am standing what I can achieve okay so that is your starting point beginning and if you cannot make your parents happy right if you cannot return them something which they are looking for वो कब से देख रहे हैं वो कब से उनकी डिजायर है उन्होंने आपसे आज तक मांगा ही क्या है स्वाय अच्छा पढ़ने की अभी तो आपके फादर ने या मदर ने आपसे कहा है कि ये काम करके दो ऑफिस का घर का बहुत जरूरी है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है करते थे तो बड़ी अच्छी बात है अदरवाइज दे ऑलवेज से नहीं पढ़ रहा है बच्चा रहने दे मत करे तो बच्चा पढ़ के अगर उसने सी ग्रेड ही लाना है फिर तो बड़ी अच्छी बात है बेटा so at least that grade which can bring a smile or bring some happiness in the heart of your parents उस ग्रेड को तो आप टारगेट रखते हैं ना वो मेरा नहीं ख्याल कि वो सी है या बी है it is somewhere closer to A star or A so if you just aim for A star तो भी मुश्किल होता है समटाइम्स एम से बंदा जरा सा नीचे आ जाता है और अगर पहले एम ए का किया हो तो नो वंडर बी या सी में स्लिप कर जाए बंदा सो ए स्टार राइट सो कैसे पढ़ेंगे कोई सजेशन है इसके लिए क्या करें एग्जाम प्रेपरेशंस कैसे होनी चाहिए
सबसे पहले पास्ट पेपर स्टार्ट कर दें। यस नो मे बी, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं उसको आपकी सर पास्ट पेपर। रजामंदी समझूंगा, एग्रीमेंट समझूंगा आपका। ओके, No. should we start with the past papers? No. ये नो वाला केड़ा बच्चा भाई? Who is this brave child who said no? Ali, you said it. नो सर। और शायद तेरा दिल भी इतना बड़ा है। Okay, so the child who said no, what should we do before the past papers? Study the textbook. This is Neha Salman. Ji Neha beta, we need to study what? The textbook. Textbook. And which book you are using in your school, or which book do you have right now with you? IGCSE. And from which school you are, beta? I don't go to school. All right, good. At least you are saving some of the money of your parents. All right. और किसी बच्चे को ले कोई किताब? बेटा, other than this, you can have Abbott की book है, blue color की. You can have Physics Matters. You can have Explaining Physics Stephen Hawking की. And so on. ठीक है बेटा? इनमें से कोई भी हमारी, remember, टेक्स्ट बुक नहीं है बेटा. These all are our prescribed books. There is a need to understand, in Cambridge, they don't have any one single textbook. Okay? Yes, जो हमारा पंजाब बोर्ड है या पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, उसकी टेक्स्ट बुक्स होती है, कैम्ब्रिज की बुक्स नहीं है. इनकी सारी की सारी बुक्स को आप प्रिस्क्राइब्ड रेफरेंस बुक्स कहते हैं. Your school can use this IGCSE, Marshall Cavendish की, Abbott की, Stephen Hawking की, Physics Matters, कोई सी भी यूज कर सकते हैं. That's why सारे schools variety of books यूज करते हैं. ऐसे ही है ना? इनमें से अच्छी वाली किताब कौन सी है? सबसे अच्छी सब ठीक है. अब्दुल्ला, वेरी गुड. और मैक 22 कौन है? जी, मैक 22. कैन यू हेयर मी प्रॉपरली? Yes, sir. गुड. ये शाहिर है? ओके. तो बेटा, नो सर. सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, राइट? और सबसे अच्छी वो बुक है जो आपको समझ आ रही है, राइट? तो हमने फॉलो किसको करना है? हमने फॉलो करना है कैम्ब्रिज सिलेबस. और हम शाबाश. सर अब्दुल्ला. अब्दुल्ला, एक्सेलेंट. शाबाश बेटा, जीते रहो. कैम्ब्रिज सिलेबस को पेपर कहां से बनना है? इन बुक्स में से, कैम्ब्रिज के. बेटा वो आपके पास होना चाहिए. आज जिन बच्चों के पास है, एक्सीलेंट, शाबाश. जिनके पास नहीं है बेटा, 1 सेकंड में क्लिक करना है और उसको डाउनलोड करना है. फिजिक्स के बेशुमार सिलेबस है. आपने ये वाला कोड, ठीक है, इसका सिलेबस डाउनलोड करना है. किस ईयर के लिए? 2021। या एक रेंज होती है, 3 साल की देते हैं.
ठीक है, उसमें आपका ये 2021 ईयर फॉल करता होगा बेटा। ये वाली आपने सिलेबस डाउनलोड करना है सारे बच्चों ने। दिस इज योर होमवर्क, ये वाला। ठीक हो गया जी? 3 days we are going to spend first 3 days on how we are going to prepare for exams and what is required for that, and we need to understand है क्या ये। मैंने आपको इन 3 दिनों में फिजिक्स नहीं समझाना, मैंने आपको फिजिक्स जो कैम्ब्रिज का पेपर होता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स समझानी है। और इसका जो कंटेंट है ना, सिलेबस का कंटेंट, वो आपको आता है। किसी को 3% आता होगा, किसी को 50%, किसी को 99% आता होगा। ठीक है, लेकिन मैं सबसे पहले आपको आपका डेस्टिनेशन दिखाना चाह रहा हूं, हमने जाना कहाँ है। ऑलराइट, व्हेन यू विल बी क्लियर अबाउट दैट, ये पूरा पार्ट, फिर वी विल स्टार्ट मूविंग ऑन द कंटेंट ऑफ द थिंग्स। पहले हमें क्लियर तो कि हमने कहाँ जाना है, कैसे अचीव करना है ये सारा कुछ। सो वी आर लेइंग डाउन द फ्रेमवर्क फॉर दैट। ओके, सो कल हमारी सारी बात कैम्ब्रिज के सिलेबस के ऊपर है, एंड यू विल फिगर इट आउट कि इन सारी बुक्स में से एक भी बुक ऐसी नहीं है जिसमें वो सारे का सारा सिलेबस गिवन हो। दे आर कवरिंग मैक्सिमम ऑफ इट, नॉट ऑल ऑफ इट। तो कोई चीज एक्सप्लेनिंग फिजिक्स में काम है, तो कोई आईसीएसई की फिजिक्स में काम है, और इसी तरह से एवरेज, और इन सब में कुछ ना कुछ राइट। सोल्यूशन क्या उसका? फिर जिन बच्चों के पास घर में कम से कम फिजिक्स की 2 किताबें मौजूद है, 2 बुक्स, वो इधर अपने ऑनलाइन हाथ खड़े करेगा, मुंह से नहीं बोलना, रेज योर हैंड ताकि मैं देख सकूं। जिन आपके पास है 2 किताबें घर में, नहीं है, ओके, आपके पास बेटा ऑलराइट 3 बच्चे हो गए मेरे पास जिनके पास हैं, बाकी मोस्ट ऑफ यू पीपल 4 हो गए। ओके, देखो बेटा, बुक होना या ना होना इस वक्त कोई वो नहीं है, बट वी रिक्वायर इट। ऑलराइट, शाबाश, जिनके पास है एक्सीलेंट, जिनके पास नहीं है बेटा उनके लिए भी एक होमवर्क है। आज कल परसों 3 दिन में, इस वीक में आपने ओल्ड बुक शॉप जाना है, पुरानी किताबों की दुकान पे, और उससे जाके पूछने कि ओ लेवल्स फिजिक्स का खाना किस तरफ है, बुक्स किस तरफ है, वो आपको बता देगा। ये वहां पे जाके आपने बुक्स ऐसी, पंजाबी में कहते हैं फोलरनी, खोल के देखनी, राइट। और जो भी टॉपिक्स आपको आते हैं अच्छे तरीके से वो देखने, वो उसमें कैसे गिवन है। इफ यू फील कि उसकी लैंग्वेज इजी है, कॉम्प्रिहेंडेबल है, उसमें सफिशिएंट एक्सरसाइज गिवन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है उसके अंदर, डिटेल्स दी हुई है उन्होंने, ठीक है, और आपको वो बुक अच्छी भी लग रही है, तो बाय दैट 400-500 रुपए की, जितने का एक मैक बर्गर आता है उससे भी कम कीमत में वो किताब आपको मिल जाएगी। सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव एटलीस्ट 2 बुक्स, ताकि हम उनको रेफर कर सकें। ऑलराइट, और सारे बच्चे जितने यहाँ पे पढ़ रहे हो, वो जब ओल्ड बुक शॉप जरूर जाया करो, और जाना है आपने, और वहां से जाके आपने कोई एक वर्क बुक जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो जरूर लेनी, खरीदने की कोशिश करें, ढूंढनी है आपके पास पेपर्स, दे आर नॉट द गारंटी कि आपकी रिवीजन कंप्लीट हो गई है। नो, आप एक एमसीक्यू कर लेते हो, वो अगर फिर से कहीं पे और रिपीट हो तो आपको पहले से ही पता होता है यार इसका आंसर डी पे लिखा हुआ होगा, ठीक है। सो ऐसी वर्कबुक लो जिसके क्वेश्चंस आपने पहले ना देखे हो, लेट्स सपोज नहीं मिलती ऐसी, तो जो पुराने पास पेपर्स हैं 2000 के या 2005 तक की पास पेपर्स की बुक, वो सस्ती भी मिलेगी
और ऐसे फजूल में पड़ी भी होगी, उससे हो सकता है वो आपको मुफ्ती दे दे या 50-100 रुपए में। ऐसी पुराने पास पेपर्स की कोई बुक ले लो जिसको आप अपने आप को टेस्ट करने के लिए यूज करो। अनसीन क्वेश्चंस को जब तक नहीं करोगे आपकी प्रेपरेशन, सेल्फ प्रेपरेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक हो गया? तो 2 बुक्स आपके जिम्मे होगी बेटा। ये आप जो अगले 3 महीने हमारे है ना, इसमें मैं ये चीजें रिपीट नहीं करूंगा। आई एज्यूम कि आपको समझ आ गई है और आपने ये कर ली है। ओके, सो ये लिखते जाओ सारी इंपॉर्टेंट चीजें। इफ यू कैन लाइक इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ तो ही हमारा यहां तक पहुंचना है ना हम। ठीक है, टूटी हुई तलवारों से तो नहीं हम जंग जीत सकते। एम्यूनेशन हमारे पास पूरा होना। तो कल हमने सिलेबस की बात करी। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट सिलेबस में क्या होएगा? टॉपिक्स होंगे। आप में से किसी बच्चे ने इसको पूरा पढ़ा है कभी? Yes, sir. प्लीज उसको आज डाउनलोड भी करना, स्किम स्कैन भी करना, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन इट, अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, ऑलराइट जी, पास्ट पेपर्स आई एम श्योर सबके पास है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सिलेबस कैम्ब्रिज को, एंड देन एज इस बच्चे ने कहा था, नेहा ने, यस, नेहा she said कि हमें बुक से स्टार्ट लेना है। नेहा, can you elaborate that a little bit? What do you mean we should take a start from the textbook? We're supposed to read it and understand the content of it. All right, okay. We have approximately 3 months time. And we have to prepare for exams. This is like a crash program. So if we'll go by each and every topic, considering that I have to make you people It'll take too much time. we require at least 6 months for that. Okay? So what we can do is we can spare some time. This is important. I agree. Rather, it is very important. If you don't know the content, it's difficult to attempt the past papers or difficult to comprehend even the questions. So that is the primary thing. So what we can do, we'll have a quick revision, right? Quick revision. We'll spend 1 month, 1.25 months on quick revision. Quick revision means I will simply focus on those areas which are conceptual, which are important as per your examinations, right? And we will try to cover one complete topic, not the chapter, one complete topic. We have like 7 different topics in our syllabus, Cambridge syllabus. And then for each topic, we'll have a formal test. Okay? So that will be our quick revision session, which will last for like 30 to 45 days. And for the remaining, yes, we will refer to past papers, but past papers बेटा ये वाले नहीं होंगे जो आपके पास हैं, right? आपको टॉपिक वाइज मैं अपने टेस्ट दूंगा, अनसीन आप लोग वो करोगे, और जब वो कर लोगे तो फिर हम इसको ईयरली बेसिस पे डिवाइड करेंगे। 3 टेस्ट या 3 एग्जाम्स हमारे ऐसे होंगे जो क्लास 9, 10 और 11 में से आएंगे, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट आएंगे। यस, ऑन द वे हम पास्ट पेपर्स को ये चेक जरूर करेंगे
कि इसमें स्टूडेंट्स की कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होती हैं, मिसकंसेप्शंस क्या क्या हैं, एग्जामिनर की चीजों पे बच्चों को पेनलाइज करते हैं, वो मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी, राइट। वो जब हम इसके बाद जो अगले फेज में एग्जाम पेपर्स को देख रहे होंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। ठीक है बेटा, तरीका हमारा यही होगा, हम टेस्ट या एग्जाम क्लियर करेंगे, उसके एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके पॉइंट्स देखेंगे, आंसर्स को देखेंगे, और इस तरह से 2, 3, 4 हम years के पेपर्स करेंगे, ऑलमोस्ट लाइक 5 to 10 के बीच में पेपर्स करेंगे। तो जस्ट टू गिव यू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टाइल, पेपर आता कैसे है, अटेम्प्ट कैसे करना होता है। ठीक है बेटा, और फिर इंशाल्लाह लास्ट में आपका एक खुद यहाँ पर प्रॉपर टेस्ट होगा, एग्जाम फ्रॉम द एंटायर सिलेबस, दैट विल बी द कंक्लूसिव एक्टिविटी। और फिर हम एक आपका ग्रेड इंशाल्लाह वो भी आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसके साथ मैच करते हुए बताएंगे आपको। लास्टली ये सारी चीजों की रिपोर्ट आपके पेरेंट्स को जाएगी बेटा। वो बंदा जो आपकी फी पे कर रहा है, that person needs to know what is the performance of my responsibility, जिसके लिए मैं ये पैसे भर, राइट। आपको अच्छा लगे या बुरा, I need to share all this with your parents. I'm sure ऐसे ही है सबके, ठीक है। Any suggestions, कोई आपके एंड से कोई चीज, कोई अच्छी बात आपने, कोई ऐसी चीज को मिस कर दी हो मैंने, प्लीज वो बताओ। सर अब हम किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे? मैं बेटा किस टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, ये जी आपके पास 2 दिन मजीद हैं। जी मैं किसी एक टॉपिक से स्टार्ट नहीं लूंगा, राइट। मैंने आपके बातों पे चलना है। आप मुझे बताएंगे कि मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम टॉपिक ए में है, या कोई और बताएगा कि मुझे सी में है, मुझे एफ में है, मैं उसी को प्रायोरिटाइज कर दूंगा। ठीक है, आई एम श्योर कि आपको जैसे मैग्नेटिज्म है, एनर्जी वर्क है, इनमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। सर हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं किया था। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम ज्यादा होती है बच्चों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ को काइनेमैटिक्स में भी आ जाती है, ठीक है, प्रेशर में होती है, कुछ इस तरह से करके। तो वो जो टॉपिक्स सरफेस होंगे ना, वो हम यहाँ पर लिख लेंगे और फिर उनको वन बाय वन उनको हम पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके। और अगर उसमें कोई ऐसी चीज और होगी जो डिपेंडेंट होगी, रिलेटेड होगी, किसी के साथ इंटीग्रेट हो रही है, तो वो वाला टॉपिक भी क्विक रिवीजन में शामिल हो जाएगा। सो वंस यू विल हैव दैट कॉन्फिडेंस कि यार अब ठीक हो गया, अब मेरी प्रॉब्लम्स रिमूव हो गई, तो वी विल टेक द स्टार्ट। मैं इस तरह से जाता हूं बेटा, ठीक है। सो अच्छी तरह से बेटा इमेजिन करो कि दिस, इमेजिन क्या है, दिस इज योर लास्ट चांस नाउ, ठीक है। तो अपने चैप्टर्स की प्रॉब्लम्स की एक लिस्ट बनाओ, सबसे ऊपर सबसे गंदा वाला टॉपिक जो बिल्कुल ही नहीं आता, ऑलराइट। जी, तंजील, नेहा, मरियम, मैक 22, हमजा, फरहीन, अरहम, अली एंड अली जहाजेब, अब्दुल्ला, शाहिर पता नहीं किधर है, ओके, इर्तजा एंड हरमैन। सबको बेटा चीजें क्लियर है? Tomorrow Yes, sir. you are going to come with the list of your topics. Secondly, you must at least have the Cambridge syllabus with you. ठीक है, preferably you must go through it, otherwise you need to have it. और जब कभी भी मार्केट जाओ, ओल्ड बुक शॉप से एक आध बुक अपने लिए और खरीद लो, ऑलराइट। एनी चीज which you think is yet not covered or requires some more explanations? All right, one last thing, जो बच्चा मेरा टेस्ट नहीं देगा उसकी एब्सेंट नहीं लगेगी बेटा, उसका 0 लगेगा, आई एम टेलिंग यू, 0, राइट। और वो आपके टोटल एंड वाले ग्रेड में शामिल होगा, ओके। सो वेदर आपको टेस्ट आता है या नहीं आता है, स्किप मत करना,
क्योंकि जब हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो हो सकता है जो आपको 20 में से 19 क्वेश्चंस नहीं आते वो ड्यूरिंग द डिस्कशन क्लियर हो जाए, ठीक है? ऑलराइट, ओके क्लास, this is all for today. Tomorrow we are going to look at exclusively what is the syllabus. हमने एग्जाम किस चीज का देना है, वो टॉपिक कौन कौन सी है और उसमें से वो पूछते किस तरह से हैं और उनके जवाब हमने कैसे देने। कल हम इसको थ्योरेटिकली देखेंगे सारे, प्रैक्टिकली तो ऑन द वे हम करेंगे, बट थ्योरेटिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ओके? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, सी यू पीपल टुमारो इंशाल्लाह। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू कैन से बैक, अदरवाइज इट्स डन। जी हरमन, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड? नहीं सर, मैं तो क्लियर हो? मैं क्लियर। ऑलराइट, आप सर सर हम लोग ये सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करेंगे या फिर कुछ स्किप भी करने पड़ेंगे? बेटा कल इंशाल्लाह देखते हैं ना कि लिस्ट क्या निकलती है, ठीक है? हमारा ज्यादा सारा कल की उसी पे ही डिपेंड करता है और फिर उस्तादी तो यही है ना कि मैं आपको इस तरीके से कराऊं कि सारा कवर हो जाए। आई नो कि बच्चों जी को सर। कॉन्फिडेंस तभी आता है जब एक सारा सिलेबस कवर हो जाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जब ये पता चल जाता है कि यार मेरी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी, ठीक है? तो दोनों एंड से मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा, जस्ट टू ठीक है। इन्वॉल्व यू पीपल। मैंने कहा है कि अपनी अपनी लिस्ट बना के लियो, बट आई नो कि मुझे करना क्या है, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ओके बेटा।